Welcome to the class, dear students. Let's begin today's class. Today we'll be dealing with the topic of World Bank. And as we have learned in last lecture that two main institutions came into existence because of the Bretton Woods Conference, which was held just during the last phase of World War II. So two main institutions came into existence. One was IMF and other was World Bank. About IMF, we have read in the last lecture. We have understood what are the concepts of IMF, what are the functions, how IMF obtains its objectives, and similarly other concepts of IMF we came to understand. Today, we will understand about second major institution, which is of World Bank. But before starting the topic of World Bank, a small topic was left, which was the role of IMF with respect to developing countries, how IMF have actually helped the developing countries right from its inception. So first we will look at this topic and then slowly we will move towards World Bank. So let me share with you the slide. Right. So the role of IMF for developing countries in recent years. There is a major misconception that IMF has been pivotal in improving the condition of developed nations only or rich countries only. But as you all know, the major function of IMF was to help the member countries in balance of payment crisis. So whenever an economic situation arose, when the member country is getting into trap of balance of payment crisis, then IMF jumps in and is always ready to help the member nation. So let's see what was the role of IMF with respect to low-income countries. So how does IMF support low-income countries? So there are various methods by which, and there are various methodologies by which IMF has been very, very active in supporting the low-income countries. The first one is through surveillance activities. The surveillance activities involve the continuous monitoring of members' economic and financial policies. So over the period of time, the IMF keeps on monitoring the macroeconomic as well as microeconomic conditions of the member nation. So through surveillance, if it is correctly surveillancing and it's doing its activities of surveillance properly, then because of this surveillance activity, IMF is able to tell and give timely inputs to the member countries about any possible economic disaster which the country is going to be engulfed in. So IMF gives timely inputs to the member countries on the possible course correction which can be done by the member nation. And this is particularly important with respect to low-income countries. So IMF has got such an expertise with it, within itself that it is able to do this surveillance activity and report that properly to the member nation. Now the second point is discussion with countries' authority, focus on how their economic policies affect stability and explore desirable policy adjustment. So after surveillance, there is another method which is engaging into continuous discussion with the member country through policymakers,
जो भी जो है उस कंट्री के डेवलपिंग लो इनकम कंट्री के पॉलिसी मेकर्स होते हैं, चाहे फेडरल, चाहे वहाँ के सेंट्रल बैंक के मेंबर्स हों या आपके वहाँ के लॉ मेकर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, उनके साथ जो है डिस्कशन करना और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना कि किस तरीके से जो है इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ कंट्री आगे प्रोग्रेस कर सकता है। थर्ड इज कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नो हाउ का डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजीज को लेके आना जिससे कि जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ के बूस्टअप हो सकें। So capacity building activities focus largely on how least income countries can boost domestic revenues, manage public finances and monetary policy, regulate the financial system, and develop statistical systems to help them implement sound policies and good practice, as well as progress towards United Nations Sustainable Development Goals. तो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ का टेक्निकल नो हाउ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे एक्सपर्टीज डेवलप करना, वहाँ के लोगों को जो है वहाँ पे जो है उस तरीके की एजुकेशन देना या वहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक्सपर्ट्स हैं उनको और इक्विप करना नई फंडामेंटल्स से और नई स्टैटिस्टिकल सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम्स, इस तरीके से चीज़ें ERPs लेके आना और एंकरेज करना वहाँ की गवर्नमेंट को कि इसको अडॉप्ट करे, और जो मैनेजमेंट गुड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट होती हैं उसको अडॉप्ट करना। जब ये सब चीज़ों में IMF हेल्प करता है लो इनकम कंट्रीज़ को, और जब लो इनकम कंट्रीज़ इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो फिर उसके बाद जो है जो कंट्री होता है वो स्लोली जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है, और यूनाइटेड नेशंस के जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, जो कि जो है अब पहले 2015 तक के गोल्स थे, अब नेक्स्ट 2030 तक के जो है गोल्स एक्सटेंड किए गए, उसमें कुछ रिवीजन करके, तो उनको भी अटेन करने में जो है हेल्प मिलती है। Which IMF instruments can be used to provide supports to LIC? तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक तो जो है जनरल रिसोर्सेज अकाउंट ऑन नॉन कंसेशनल टर्म्स, इसमें कोई कंसेशन नहीं दिया जाता है, और एक पॉसिबिलिटी होती है कि LIC लीग्स लो इनकम कंट्रीज को जो है आप लोन दे सकें। और IMF ऑल्सो प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। तो IMF का अपना एक PRGT ट्रस्ट बना हुआ है, वो जो है लो इनकम कंट्रीज को कंसेशनल रेट्स पे जो है लोन्स देता है, सो दैट, और उनकी नीड के हिसाब से देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज होंगी जो कि कोस्टल एरियाज पे लाइक करती हैं, तो वहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग करेंगे और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, वहाँ गेहूँ उगाने के लिए सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उनको फिशरीज से रिगार्डिंग जो है आप फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, उसमें टेक्निकल नो हाउ उनका डेवलप करिए, तो उनका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो टेलर्ड होता है उनका जो है जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मेंबर कंट्री वो चीज दी जाती है। PRGT has 3 concessional lending facilities। तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट की 3 कंसेशनल लेंडिंग फैसिलिटीज होती हैं। एक होती है ECF या एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फिर होती है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, और फिर होती है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है कि सस्टेन मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट किया जाता है, और उस हिसाब से जो है उन लोगों को क्रेडिट दिया जाता है। स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी में होता है फाइनेंसिंग फॉर LIC विद एक्चुअल और पोटेंशियल शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एडजस्टमेंट नीड्स कॉज्ड बाय डोमेस्टिक और एक्सटर्नल शॉक्स और पॉलिसी स्लिपेज कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन प्रिकॉशनरी बेसिस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इंक्रीज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये जो आपका SCF होता है, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जनरली अगर LIC कंट्री किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जो है फंस जाती है, तो उसमें जो है उसको हेल्प किया जाता है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है वो रैपिड फाइनेंशियल सपोर्ट एज अ सिंगल अपफ्रंट पे आउट फॉर लो इनकम कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स
possible repeated disbursement over a limited period in case of recurring or ongoing balance of payment. तो अगर बार बार उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनको जो है इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी दी गई है। IMF डेवलपिंग नेशंस को इवन नेचुरल कैलामिटीज में भी हेल्प करता है, कोई एपिडेमिक आता है उसमें भी हेल्प करता है। जैसे आज की डेट में अगर कोरोना से अफेक्टेड कंट्रीज हैं तो फिर उसमें भी जो IMF ने बहुत हेल्प किया है। सिमिलरली 2015 में पोस्ट कैटास्ट्रोफ डेट रिलीफ ट्रस्ट ये चीज सामने आता है और इसके थ्रू जो है बहुत पुअर कंट्रीज को नेचुरल डिजास्टर में हेल्प करने का प्रोविजन किया जाता है। और 2015 में जो इबोला की जो प्रॉब्लम आई थी, जैसे आज की डेट में जो है पेंडेमिक है हमारा कोविड-19 का, तो उसी तरीके से 2015 में एक एपिडेमिक था इबोला का जिसने गिनिया, लाइबेरिया और सीरिया लियोन इसको जो है काफी इफेक्ट किया था। ओरिजिन प्रैक्टिकली यही थी ये कंट्रीज, तो इसमें भी जो इसने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स की फाइनेंसिंग की थी और जो है इसमें हेल्प किया था इस एपिडेमिक से बाहर आने के लिए। IMF ने इंडिया के साथ भी जो है बहुत अच्छा एंगेजमेंट रखा है और इंडिया जब 1990s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जो है एकदम से उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की प्रॉब्लम में फंस गया था, तो वहां पे भी IMF ने इंडिया की बहुत हेल्प की थी। और जाहिर सी बात है ये हेल्प जो है वन साइडेड नहीं थी, IMF ने बहुत सारी सर्टेन कंडीशंस भी लगाई थी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में इंडिया की हेल्प करने के लिए, जिसमें से वन ऑफ द मेजर प्रोविजंस था कि इंडिया आपसे जो है अपना रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी जो थी इंडिया की, यानी कि जो है फ्री इकोनॉमी नहीं थी, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी से एक फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ना, उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए थे, जिसमें से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एरा यहाँ से ही शुरू होता है। तो IMF ने बहुत सारी शर्तें रखी थी और उसके बदले में जो है इंडिया को जो है बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने के लिए उसने लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। तो प्रैक्टिकली रीपेमेंट ऑफ ऑल लोन्स टेकन फ्रॉम IMF हैज बीन कंप्लीटेड ऑन May 31, 2000। तो हमने 2000 तक जो है IMF का सारा लोन पे कर दिया था और इंडिया इफेक्टिवली अब IMF का एक अच्छा कंट्रीब्यूटर हो चुका है, जो हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंडिया का शेयर जो है IMF कंट्रीब्यूशन है वो भी अब बढ़ गया है। IMF ने जॉर्डन में भी जो है काफी हेल्प की थी। जॉर्डन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एक छोटा सा कंट्री है जस्ट एडजेसेंट टू सऊदी अरेबिया, मेडिटेरेनियन सी के बगल में है एकदम। तो ईयर 1989 में जॉर्डन एक सिविल वॉर के थ्रू जो है गुजर रहा था और वहां मेजर इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, प्लस इराक और कुवैत का जो फर्स्ट गल्फ वॉर था वो भी उसी टाइम पे लगभग शुरू हो रहा था और बहुत सारे जॉर्डेनियन सिटीजन्स थे जो कि जो है कुवैत से वापस जॉर्डन की तरफ आ रहे थे, क्योंकि जो है इराक ने कुवैत के ऊपर एग्रेशन कर दिया था और लड़ाई हो रही थी। तो बहुत सारे जॉर्डेनियंस थे वो जो है वापस जो है कुवैत की तरफ जॉर्डन की तरफ आने लग गए थे। तो अचानक से जॉर्डन की जो है पॉपुलेशन जो थी एकदम से जो है बहुत बढ़ गई थी माइग्रेंट्स की वजह से, और उसकी वजह से भी एक हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया और प्रॉब्लम बहुत हो गई। तो IMF वहाँ पे फिर हेल्प करने आता है और 5 ईयर एग्रीमेंट होता है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ और उस इकोनॉमिक रिसेशन से निकलने में बहुत हेल्प करता है IMF। From 1993 to 1999, IMF gave Jordan 3 extended funds facility loans. As a result, government undertook massive reforms of privatization, taxes, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ईजियर ट्रेड पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अगर इंडिया को जो है गवर्नमेंट IMF से हेल्प मिला तो उसने भी जो है इंडिया को कंट्रोल इकोनॉमी से फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ ले जाने का प्रोविजन रखा था, जिसके बाद जो है LPG का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एरा शुरू होता है। By 2000, the country was admitted to World Trade Organization
and 1 year later signed a free trade agreement with United States of America. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि IMF का काफ़ी रोल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, चाहे वो इंडिया का केस रहा हो, चाहे वो जॉर्डन का केस रहा हो, चाहे वो ब्राज़ील का भी केस रहा हो, और चाहे वो लो इनकम कंट्रीज़ जैसे हमने देखा गिनिया, सेरेलियोन और जो भी एपिडेमिक से अफेक्टेड कंट्रीज़ थी उसमें भी रहा। तो IMF ने टाइम टू टाइम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट इनकम कंट्रीज़ को हेल्प किया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अ वर्ल्ड बैंक। तो as we all know that World Bank was one of the two major institutions which came into existence in Bretton Woods Conference. तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू गवर्नमेंट्स ऑफ पुअरर कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि वर्ल्ड बैंक जनरली लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है। जनरली ये लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, कंसेशनल होते हैं, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लोन्स कभी कभी 20-20 साल के लिए दिए जाते हैं, 30-30 साल के लिए दिए जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि जो है डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज में कैपिटल प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो डैम्स हो गए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके लिए फाइनेंसिंग करता है। World Bank comprises two institutions, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, and International Development Association. World Bank basically जो है component है World Bank Group का। World Bank Group क्या है? World Bank Group is an extended family of 5 international organizations and the parent organization of World Bank. A collective name given to the first two listed organizations, IBRD and ID. इसका मतलब है वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 5 इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका एक ग्रुप है, समूह है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब मिलके, सारे ऑर्गेनाइजेशन 5 मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है। जिसमें से अगर हम सिर्फ पहला और दूसरा यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इनकी बात करें तो ये दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग केवल वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे, इसलिए हम लोग यानी कि फर्स्ट और सेकंड के ही बारे में आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन देंगे। बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मल्टी लैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या होते हैं? वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है टू इंड्यूस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए और क्राइसिस में नहीं फंसना चाहिए। एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज बाय फॉलोइंग वेज: to provide guarantee on private loans or capital investment, and B, if capital is not available even after providing guarantee, then IBRD provide loans for productive activities on considerable condition. तो आप एक तरीके से ये समझिए कि जब आप कहीं से लोन लेते हैं, कोई किसी को भी लोन चाहिए होता है, अगर आप कार के लिए लोन लेते हैं
तो एक गारंटर भी होता है, राइट। तो एक गारंटर भी होता है जिसका साइन जरूरत होती है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि एज ए गारंटर भी जो है आता है, अगर किसी प्राइवेट पार्टी से जो है वो कंट्री लोन लेती है, पुअर कंट्री लोन लेती है, तो वर्ल्ड बैंक एज एक्ट्स एज एन गारंटर। बट इवन आफ्टर वर्ल्ड बैंक एक्टिंग एज ए गारंटर, अगर जो है प्राइवेट लोन नहीं मिलता है उस कंट्री को, तो वर्ल्ड बैंक खुद लोन प्रोवाइड करती है थ्रू IBRD, प्रोवाइड्स लोन्स फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑन कंसिडरेबल कंडीशन। Next objective है to ensure the implementation of development projects so as to bring about a smooth transference from war time to peace economy. Okay? तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्ल्ड बैंक के। सबसे पहला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल देना है उसको, ठीक है, लंबे ड्यूरेशन के लिए देना है, और ड्यूरेशन 30-30 साल का भी होता है, 20 साल का भी होता है, फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक बात का हमको ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड बैंक जब बना था तो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बना, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो एकदम वॉर टोन कंट्रीज थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर चुका था। तो इसीलिए IBRD जो था वो जो है एक एसेंशियल एलिमेंट, वो सबसे पहले पिक्चर में आया था, और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए जो है इंटरनेशनल बैंक बनाया गया था। तो इसीलिए मेंबर कंट्रीज का रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो हमेशा से ही एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा था। तो टू प्रोवाइड कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, टू इंड्यूस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, चाहे वो IBRD के थ्रू खुद दे, अगर वो प्राइवेट पार्टी के थ्रू ले रहा है तो गारंटर की तरह एक्ट करेगा वर्ल्ड बैंक, विच इज अ वेरी वेरी मेजर रोल। फिर टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज टू ब्रिंग अबाउट स्मूथ ट्रांसफरेंस फ्रॉम वॉर टाइम टू पीस टाइम। तो इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है, वो टाइमली रिपोर्ट्स मांगता है, उसकी ऑडिटिंग करता है, इस तरीके से वो इंश्योर करता है कि प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो। फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक क्या क्या हो सकते हैं? Presently, the World Bank is playing the main role of providing loans for development work to member countries, especially to underdeveloped countries. The bank provides the loans for various development projects of 5 to 20 years duration. Bank can grant loans to member countries up to 20% of its share in period of capital. या फिर बैंक can also provide loan to private investor belonging to members on its own guarantee, but private investor needs to take permission of its native country. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो भी वो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसका इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड कंडीशन, वो भी जो है वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। जनरली बैंक ग्रांट लोन्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ड्यूली सबमिटेड टू द बैंक बाय मेंबर कंट्री। फिर जो डेटर नेशन है हैज टू रीपे आइदर इन रेवेन्यूज, करेंसीज और इन करेंसी व्हिच लोन वाज सैंक्शन। तो हमको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है वर्ल्ड बैंक के बारे में, बट स्टिल जस्ट टू रिफ्रेश, वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड एट 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये हम लोग को पता ही है, और साथ में IMF भी जो है एग्जिस्टेंस में आता है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि वर्ल्ड बैंक का ट्रेडिशनली जो है, जो हेड होते थे, प्रेसिडेंट होते थे वर्ल्ड बैंक के, वो एक अमेरिकन होते थे। हेड ऑफिस जो है वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन में है, US में, और हमेशा से वर्ल्ड बैंक पे US और UK का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। The intention behind founding of World Bank was to provide temporary loans to low-income countries. ये भी हम लोगों ने देख लिया था, समझ लिया था। The bank may also make loans and demand policy reforms from recipients. 1944 से 1974 के बीच में उसका रोल क्या रहा? स्लो स्टार्ट हुई क्योंकि शुरू में लीडरशिप को लेके काफी स्ट्रगल होती रही, बहुत सारी चीजों पे जो है एग्रीमेंट नहीं हो पाता था। 1947 में मार्शल प्लान आया। मार्शल प्लान का मतलब ये था कि US ने स्टार्ट किया उन सारे कंट्रीज को फंडिंग करना जिनको वो अपने फोल्ड में लेना चाहता था, इसलिए उसने जो है यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट किया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को।
सिमिलरली यूएसएसआर भी एक पैरेलल प्लान चला रहा था, मगर यूएस का प्लान मार्शल प्लान। तो फिर फेज विद दिस कंपटीशन द वर्ल्ड बैंक शिफ्टेड इज फोकस टू नॉन यूरोपियन कंट्रीज। तो ऑब्वियस ही बात है, जब सारा फोकस जो है वर्ल्ड बैंक यूएस का यूरोपियन कंट्रीज को फाइनेंसिंग देने में था, तो ऑब्वियस ही बात है कि यूरोपियन कंट्रीज यूएस के पास वर्ल्ड बैंक के पास तो नहीं आएंगी। तो वर्ल्ड बैंक ने अपना नॉन यूरोपियन कंट्रीज पे फोकस शिफ्ट किया, और 1968 तक इट्स लोन वर ईयरमार्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स लाइक सी पोर्ट्स, हाईवे, पावर प्लांट्स दैट वुड जनरेट इनकम टू एनेबल अ बोरोड कंट्री टू रीपे द लोन। तो एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा जो है फाइनेंसिंग करता था। तो उसने फाइनेंसिंग करना शुरू किया और उन सारे एरियाज में फाइनेंसिंग किया ताकि जो है जो भी कंट्रीज जो है पावर प्लांट्स में, सी पोर्ट्स में, हाईवेज बिल्डिंग में, इन सब में जो है डेवलपमेंट कर रही हैं, तो वो लेटर ऑन उनका यूज करके, इफेक्टिवली यूज करके वो अपनी इकोनॉमी को रीजनरेट कर सके और अपना लोन रीपे कर सके। 1974 से 80 तक क्या स्टोरी रही? 1974 to 80, the bank concentrated on meeting basic needs of the people in developing world. The size and the number of loans to borrowers was greatly increased as loan targets expanded from infrastructure to social service and other sector. तो इंफ्रास्ट्रक्चर से शिफ्टिंग शुरू हो गई सोशल सर्विस और दूसरे सेक्टर्स पे भी वर्ल्ड बैंक लोन देना शुरू कर देता है। 80 से 89 तक क्या रहा सिनेरियो कि जो वर्ल्ड बैंक ने ये भी शुरू कर दिया कि अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है विच इज नॉट इन द फोल्ड ऑफ यूएस, विच इज नॉट इन द फोल्ड ऑफ यूएसएसआर, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं, बेसिकली जो है इन सारे कंट्रीज को, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, उनको जो है अगर कोई डेट है उनका, तो उनकी भी सर्विसिंग के लिए जो है लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और उनकी पॉलिसीज में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए एडवाइस करने लग गया और उसमें उनकी इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश होने लग गई। जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात यहाँ कही जा रही है, वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो था वो काफी लेवल पे था, उनकी पॉलिसी पे था, फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए था। तो इस चक्कर में हुआ क्या, कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन भी एक उसमें से एक मेजर था, पॉइंट था। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जिस चीज को कहा जाता है उसमें प्राइवेटाइजेशन, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के नाम पे प्राइवेटाइजेशन और ये सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाई जाती थी। तो वर्ल्ड बैंक वाज क्वाइट बुलिश और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हुई बहुत सारे एशियन, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज में, कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम था, वो इस न्यू सिस्टम से बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाया और अचानक से जो है वहाँ पे जो हम लोग को पैरामीटर्स होते हैं जज करने का कि हमारा पॉलिसीज जो हमने इम्प्लीमेंट की वो सही है कि नहीं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो गया, चाहे एजुकेशन से हो गया, तो उसमें रिड्यूस्ड हेल्थ, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, एजुकेशनल लेवल्स, ये सारे जो है बहुत ही रिड्यूस्ड हम लोग को दिखाई देते हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी कि अगर हर जगह सेम फॉर्मूला जो है वर्ल्ड बैंक लगाने की कोशिश करता था तो हर जगह सक्सेसफुल नहीं होता था। 1989 से प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? वर्ल्ड बैंक हैज पुट वेरियस एडिशनल पॉलिसीज इनटू इफेक्ट टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट व्हाइल प्रमोटिंग डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट पे भी वर्ल्ड बैंक ने काफी फोकस किया है। ब्राजील के अमेजन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन को लेके काफी एक्शन लिया, उस पर फाइनेंसिंग की गई और वहां पे भी जो है उसको प्रिजर्व करने की काफी कोशिश की गई। World Bank tries to control communicable diseases such as malaria, delivering vaccines to several parts of the world and joining combat forces. यूएन के सस्टेनेबल गोल्स में भी जो है वर्ल्ड बैंक का काफी जो है हेल्प रहा, योगदान रहा और उसमें भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इन 2000 द बैंक अनाउंस्ड वॉर ऑन एड्स, इन 2019 बैंक ज्वाइंड स्टॉप ट्यूबरकुलोसिस पार्टनरशिप। वर्ल्ड बैंक एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स कि दो मेजर इंस्टीट्यूशन से मिलके बनता है, वन इज आईबीआरडी एंड वन इज आईडीए। आईबीआरडी के 189 मेंबर्स हैं, आईडीए के 173 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर स्टेट ऑफ आईबीआरडी शुड आल्सो बी मेंबर ऑफ आईएमएफ एंड ओनली मेंबर्स ऑफ आईबीआरडी आर अलाउड टू ज्वाइन अदर इंस्टीट्यूशंस विद इन बैंक सच एज आईडीए। पहले आपको आईबीआरडी का मेंबर होना पड़ेगा और जब आप आईबीआरडी के मेंबर बनते हैं तभी आप बाकी सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स बन सकते हैं और आईडीए के मेंबर भी बन सकते हैं।
करंट सिनेरियो में वोटिंग पावर देखा जाए, जैसे हम लोग ने आईएमएफ का जो रिफॉर्म्स देखा था उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक में भी रिफॉर्म्स हुए और धीरे धीरे वोटिंग शेयर जो है, यानी कि आप किसी भी पॉलिसी डेवलपमेंट होता है तो उसमें कंट्री का जो है से और इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है जब आपका वोटिंग शेयर ज़्यादा होता है। तो इन 2010 वोटिंग पावर्स एट वर्ल्ड बैंक वर रिवाइज्ड टू इंक्रीज द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नोटेबली चाइना, और इंडिया का भी इंक्रीज हुआ। तो मोस्ट पावरफुल तो ऑब्वियसली यूएस, जिसका वोटिंग राइट 15.85% है, फिर जापान, फिर चाइना थर्ड नंबर पे, फिर जर्मनी, यूके, फ्रांस। इंडिया 7 नंबर पे आता है 2.91% पे। तो इस तरीके से बहुत सारा रिफॉर्म्स किया गया और इंडिया के वोटिंग राइट्स अलॉन्ग विद अदर डेवलपिंग नेशन बढ़ाए गए। तो ये जो वोटिंग राइट्स थे, इनको चेंज करने का और डेवलपिंग कंट्रीज को जो मौका दिया गया कि अपने वोटिंग राइट्स उनके और बढ़ाए जाएं, तो द चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट विद द गोल ऑफ मेकिंग वोटिंग मोर यूनिवर्सल इन रिगार्ड्स टू स्टैंडर्ड्स, रूल बेस्ड विद ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स एंड ट्रांसपेरेंट अमंग अदर थिंग्स। तो ये बात तो थी कि और ऑब्जेक्टिविटी लाई गई, मगर मेजर जो रीजन था कि इंडिया, चाइना जैसी, ब्राजील, ये सारी कंट्रीज ऐसी थी जो पिछले 50 to 60 ईयर्स में जो है मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस बनी, और इन्होंने भी अपनी बात को रखने के लिए जो है अपने शेयर्स, अपने वोटिंग राइट्स की और इंक्रीज करने का डिमांड किया, और प्रॉपर लॉबिंग की यूएन में जाके अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलके, और फाइनली इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके वोटिंग शेयर्स, वोटिंग राइट्स बढ़ाए गए। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक is one of the major institutions along with IMF, और आगे के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि पिछले 60 इयर्स में, 70 इयर्स में किस तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF ने रूल किया है इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड को, मगर इसको बहुत सीरियस चैलेंजेस मिले हैं आने वाले टाइम में डेवलपिंग कंट्रीज से, जैसे इंडिया हो गया या चाइना हो गया। और पैरेलली चाइना ने along with other एशियन कंट्रीज एक अलग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की कोशिश की है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।